before we talk of the management part, the second word, we should understand what the change is. That means the first word, change management, basically the management of change. So we have to understand first what the change is. And once we know what the change is, then we can handle the change, we can manage the change, right? So can anybody tell me what the change is? Sir, change refers to an event that occurs when something passes from one phase to another phase, or Okay, fine. So means from one point or one phase to another point or another phase, the movement of this situation from one position to another, one phase to another, one point to another is a change. That is what your take on it. That's good. That's good. So let's begin the journey of learning with the PPT that is on change management. So here I have shared with you. So visible, slide is visible to you? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Visible hai. That's good. That's good. So let's understand what is the change and then what the change management is. So this is a saying which is written before you. Please go through it. Can you read? Anyone? It is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the most. Is it complete? No. No, sir. No. Then complete it. Yeah. Adaptable. Most adaptable. Okay. Adaptable, once you say adaptable, it is also not complete. Still you need something. Adaptable for what? Yeah, Madhvendra? Sir, fittest with the environment or ecology. Okay. Okay. Both of you well tried. Okay. Yes. Anyone else? Brilliant. Pardon, Suprabhaji? But the most resilient. Most resilient. Good, good. Somnath, what is your take on it to complete? Yeah? Most stubborn. Okay. Let's remove the curtain on this mystery, right? So ये मैंने कुछ white कर दिया था. अभी मैं पीछे जाके इसको जरा black कर दूं. Now visible? Yes, sir. So now read someone. Most responsive to change. Read completely. It is not the strongest of species that survive. Survive की जब बात हम करते हैं तो for a longer span of time और for a particular span of time की हम बात कर रहे हैं कि एक span of time में वो species, span of time यहाँ बहुत बड़ा है, like generations, like years to change, 100 years, 1000 years, lakhs of years. इस तरीके के बहुत लंबे पीरियड की बात हो रही है. It is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent.
who survived, but the most responsive to change. इस स्लाइड में आपको दो पिक्चर दिख रही हैं. कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. वेल, तो पहली जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेसी है यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? Sir, dinosaur. इट्स डायनासोर, राइट? ये अभी तक का जो फॉसिल का जो भी फॉसिल्स मिले उनके डीएनए उन सबको कलेक्ट करके जो भी स्टडी एनालिसिस हुई है उससे ये माना गया है कि धरती का अब तक का सबसे बड़ा जो एनिमल था वो था डायनासोर, और वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था, इतना ताकतवर, इतना बड़ा, जो कि आज नहीं है. और इधर ये स्कल हम लोगों को दिख रही है, ये हमारे ही कजिन्स थे और इनका नाम है बॉस्कॉप. ये बॉस्कॉप ह्यूमंस थे. तो जो भी फॉसिल की स्टडी के बाद जो मिला है कि ये एक ह्यूमन स्पेसी थी जिसको होमो कैस्पिन्स कहते थे, होमोकैपिन्स कहते थे. और इनका स्कल जो है एक ह्यूमन बीइंग जो हमारे होमोसेपियंस थे हैं हम लोग जो हैं उनकी कंपैरिजन में 30% या इससे भी ज्यादा साइज बड़ा था. ब्रेन का साइज 30% से ज्यादा बड़ा था. ब्रेन का साइज बड़ा होने का मतलब है कि आमतौर पे सीधा मतलब निकाला जाता है कि आईक्यू लेवल ज्यादा है, यानी इंटेलिजेंसिया उनके अंदर ज्यादा थी, वो इंटेलिजेंट ज्यादा थे. अगर इसको आईक्यू लेवल पे बात करी जाए तो ये कहा जाता है कि जो हमारा आज के समय में हम लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो 80 to 115 के अंदर है. 80 to 115 एंड एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो आईक्यू लेवल है वो 100 आता है. उसी में किसी का बहुत कम है तो किसी का बहुत ज्यादा. जो 80 के आसपास के हैं वो भी रेयरेस्ट हैं और जो 115 के आसपास है वो भी रेयरेस्ट है. आईक्यू के मामले में बहुत कम है. तो जो एवरेज आईक्यू लेवल है वो 100 है. इनका जो एवरेज आईक्यू लेवल था वो 150 था. आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. फाइन. तो आज ये दोनों ही स्पेसीज, एक है द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक है द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये दोनों ही स्पेसीज हमारे बीच नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. सरवाइव कौन कर रहे हैं? हम. सरवाइव वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने टाइम के साथ खुद को बदला. एंड जो कैसे थे? The most responsive to change. Getting the point? Yes. Yes, sir. जो डार्विन कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर डार्विन के इस स्टेटमेंट को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अगर इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करें तो हु इज द फिटेस्ट? So human being. No. Who is the fittest? Easily adapt change. The one who is the fittest, the one who is the most responsive to change is the fittest. अब अगर दोनों स्टेटमेंट को हम कोरिलेट करके क्या एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? The one who is the most responsive to change is the fittest. Do you agree with this or not? Yes or no? ठीक है. इसको हम Yes, sir. Yes, sir. इस कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को निकाल के. यानी सर्वाइवल उसके लिए है जो फिटेस्ट है और फिटेस्ट यानी सर्वाइवल उसके लिए है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज है. तो एनालॉजी हम दोनों के बीच में हम सिलोजिज्म निकाल सकते हैं और तब हम ये कह सकते हैं कि फिटेस्ट इज द वन हु इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज. Getting it? Now,
प्रोसीड। क्या कहते हैं पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट गुरु? The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, but it is to act with yesterday's logic. Now, आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करो, ऐसे लगता है कि आई एम डूइंग मोनोलॉग, नोबडी इज देयर, आई एम डूइंग मोनोलॉग हियर। ऑन करिए भाई। सोमनाथ जी तो रोज ऑन करते हैं, पर आज वो भी मूड नहीं था उनका। सर मेरे रूम में आज लाइट नहीं है, सो इसलिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। धीरेन्द्र सिंह यादव, आपके यहाँ क्या ट्रबल है? चलो ऑन किया इन्होंने। ओके फाइन फाइन। तो अभी आपके सामने एक स्टेटमेंट है पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर साहब क्या कह रहे हैं? The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but it is to act with yesterday's logic. What actually he wants to signify towards what? कि प्रॉब्लम्स तो नई नई आती रहती हैं। प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वो रिपीटेटिव नेचर की हो। ठीक वैसे जैसे कि कोविड आया, और कोविड आने पे हमारे पास कोई कोविड के लिए तैयारी नहीं थी। कोविड वाज ऑल टुगेदर अ नोवेल प्रॉब्लम। वी वर नॉट हैविंग टूल्स टू हैंडल कोविड। तो अब ये जब सिचुएशन होती है तो वी आर इन टर्बुलेंट टाइम। वो टर्बुलेंट टाइम होता है कि यू डोंट हैव टूल्स टू हैंडल अ प्रॉब्लम, यू डोंट हैव सॉल्यूशंस, and existing solutions are not appropriate. They just like in COVID times, हमने क्या देखा कि we were having just treatments for symptoms, और अभी तक हमने देखा कि कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है। बट ओवर द पीरियड हमने कोविड को समझा, कोविड को जाना, और ये समझा कि कोविड इज अ न्यू प्रॉब्लम, सो वी हैव टू चेंज आवर मेथड्स, वी हैव टू चेंज आवर टूल्स, टेक्निक्स टू हैंडल दिस न्यू प्रॉब्लम। Old solutions or old tools and techniques cannot be workable or cannot be effective or as effective as required to handle a new problem. So this attitudinal change was also required, and that is always required. ये basically attitudinal change चाहिए जो पीटर ड्रकर साहब बात कर रहे हैं कि आज की प्रॉब्लम को से डील करना। प्रॉब्लम समस्या नहीं है, प्रॉब्लम खतरा नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। बट असल खतरा है कि जब हम पुराने लॉजिक से उस आज की प्रॉब्लम को डील करें। ये हमें नहीं करना है, ये इनका कहना है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जब ये नहीं करना है तो हमको क्या करना है? वी हैव टू चेंज। We have to change our attitude. We have to change our psychology, mindset, and we have to make ourselves ready to embrace those changes. That is what is required. अब हमें समझना है कि चेंज है क्या। तो अभी हमने आपसे सबसे पहले ही पूछा था, what do you mean by change? Change is any situation where conditions differ from one time to another. दूसरा चेंज को हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, a progression from a phase of life to another. एक फेज ऑफ लाइफ से दूसरे फेज में आना। ठीक वैसे जैसे हमारी मैरिज होती है, मैरिज से पहले हम सिंगल होते हैं, सिंगल मैरिज के बाद हम डबल हो जाते हैं। सो मैरिज इज अ जंक्चर where, or you can say marriage is a transition point where our transition from one phase to another takes place. तो अभी देखिए कि मैरिज के बाद भी मैरिड लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर पाते, and then finally they land in trouble.
they face breakups, they have to move to courts for divorce pleas and all. तो ये क्या है? क्योंकि तो they cannot handle this change because their mindsets are just of the single, but now they are double. Both or one party may not be ready to adapt those changes, and then splits take place. Troubles come, turbulent time comes. So change तो होगा, इसीलिए तो कहा गया है the only thing permanent thing in the world is change. जब ये अटल सत्य है, परिवर्तन ही अटल सत्य है, उस परिवर्तन के साथ ससुराल जाना। माधवेन जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। माधवेन म्यूट करिए माधवेन। या सो ये जो चेंज जो हमारे सामने बाहरी दुनिया में है, क्या हम उसको अपने दिमाग में ला पाते हैं? क्या हम उसे दिमाग से स्वीकार कर पाते हैं? यही सबसे बड़ी ट्रबल है। ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई। When we are talking of the change in organization, change in institutions, then you are not responsible for the change in yourself, but you may be responsible to implement those changes in a team, in an organization, in an organization of 100, 100, 2000, 1000 people. वहां पे आपके अकेले के बदलने की बात नहीं है, वहां पे आपके अकेले चेंज को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने की बात नहीं है, एम्ब्रेस करने की बात नहीं है। चेंज मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो आमतौर पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बात कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट इंडिविजुअल सेंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लो कि जितना इंडिविजुअल में चेंज को अडॉप्ट करने, एम्ब्रेस करने और मैनेज करने की जरूरत है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपको चेंज को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। तो हम आज यही सब कुछ समझने की कोशिश करने वाले हैं। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज चेंज। नाउ एक आपको चेंज कैसे, ये नेचर कैसे हमें सिखाती है कि हमें चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे एम्ब्रेस करना है। एक छोटा सा मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो शो करना चाहता हूँ। जस्ट बी विद मी, इस वीडियो को देखिए और इससे आप जरा लेसन टेकअप करिए कि चेंज बेसिकली क्या है और कैसे नेचर हम सबको सिखा देती है और हमको सबको सीखना पड़ता है चेंज। अभी विजिबल नहीं है ना आपको? नहीं सर। वेट मैंने थोड़ा गलत जगह पर शेयर किया है। Visible? Yes, sir. Is the story of an eagle. It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must take a tough decision in its 40th year. His long and flexible talons can no longer grasp prey, which serves as food. Its long and sharp beak becomes bent,
The feathers become old, thick, and heavy. They stick to his chest and make his flight impossible. Then the eagle is left with only two options: death or go into a painful process of change. The process requires for the eagle to fly up into the mountains and sit on its nest. Then the eagle knocks his beak onto a rock until he plucks it out. Then he waits for the new beak to grow back and he starts plucking his talons one by one, painful every time. When his new talons grow back, he starts plucking his old feathers. And after all this, the eagle takes his flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is change needed? To survive and live fully, we do have to start a change process. And just like the eagle, we also have to block unpleasant memories, negative habits, and fixed mindsets. Only freed from the past burnings, we can take advantage of the present. In order to take a new journey ahead in the future, let go of your negative, old, limited beliefs. Open your fixed mindset and let yourself fly again. Just like the eagle. You probably have tried many ways to learn English by using books or reading. So have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is takeaway here from this video? The one change is needed for the survival. किस तरह से आप देखिए कि 40 इयर्स पे ईगल की लाइफ जो कट शॉर्ट हो सकती है, अगर वो इस चेंज प्रोसेस से ना गुजरे, इस चेंज को ना अडॉप्ट करे, तो वो 40 इयर्स पे खत्म हो जाएगा और 30 इयर्स जो भी और लगभग ऑलमोस्ट उसकी हाफ लाइफ है, वो उसे नहीं जी सकता और उसके लिए उसे एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो आपको दिखाई गई थी। वो उसके थ्रू जाता है और नेक्स्ट 30 इयर्स उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। सी हाउ इम्पोर्टेंट द चेंज इज फॉर दैट ईगल। तो ये एटीट्यूड कि वो पेन हमें लेना है, चेंज का पेन हमें लेना है, वो उसको रीबर्थ देता है, उसकी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स होती है। कई बार आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है, हो सकता है आपके साथ ना हो, मैंने बहुत बार देखा है कि जो सर्विस मैन होते हैं, आमतौर पे 60-62 की एज पे रिटायर होके कई सारे लोग उनमें उस सिचुएशन पे डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो किसी को पैरालिसिस होता है, कभी किसी को कुछ होता है, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी मैंने देखा है कि जो लोग जॉब में नहीं हैं, बिजनेस में हैं या जिनकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज नहीं आता है जैसे कि रिटायर होना जो एक सर्विस क्लास के साथ होता है, तो उनके साथ में वो उतना बड़ा थ्रेट नहीं होता 60-65 के आसपास। बट सर्विस क्लास में जो रिटायर होता है उसके साथ 60, 62, 63 के आसपास एक लाइफ के लिए बड़ा थ्रेट होता है। वो थ्रेट क्यों होता है? क्योंकि वो जो चेंज हुआ है उसकी लाइफ में, once he is announced to be retired or he has got retired, means वो दिमाग से उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। Those who have been officers throughout the life, नौकर चाकर और बंगलोज कार सब कुछ उनको मिलती रही है, शॉफर ड्रिवन कार मिलती रही, सब कुछ, अब अचानक से वो सब हटा और वो धरातल पे आए, तो उनके लिए बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शॉक, शायद वो नहीं उसके साथ अडेप्ट कर पाते हैं।
बहुत सारे लोगों को लगता है तुम रिटायर हो गए मीन्स आई एम ऑफ नो यूज। वो उस चेंज को, तो वो जो चेंज बाहर हो रहा है वो आप अंदर उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो दिमाग में, तो वो आपके लिए डेंजर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसीलिए उसको सेकेंड इनिंग्स कहा गया है कि सेकेंड इनिंग्स, और इसीलिए देखिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कि भाई बच्चे और बूढ़े एक समान, यानी हम जब 60-65 के हो जाए तो हम भी उतने ही स्पोर्टिव हों, उतने ही जॉबियल हो जाएं, और हमें अपने उन ग्रैंड सन्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हमें खेलना चाहिए, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स, या एक वर्ड में के ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हमें खेलना चाहिए। कि वो इसीलिए कहा गया है कि एम्ब्रेस द चेंज, कि नाउ यू आर रिज्यूविनेटेड। ये जो लाइफ है आपको कैसे अपने 20-30 साल और बढ़ाने हैं। अब आप एक बहुत जिम्मेदार, बहुत सारी चीजें आप करते हुए अचानक से आप उसको छोड़ के बच्चों के साथ खेल लो, जिम्मेदारियां छोड़ो, प्ले विद चिल्ड्रन, लीव एवरीथिंग, लीव एवरी बर्डन एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट सेकेंड इनिंग यू लीड हैप्पीली। तो कुछ वैसे ही है, ये एक्सेप्ट करना, ये अडॉप्ट करना, इसको एम्ब्रेस करना। अगर हम कर ले जाते हैं तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ठीक वैसे जैसे ईगल का बढ़ता है। बहुत सारे लोग इस एज पे आके अपने को ऑफ नो यूज समझ के रिटायर हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इज ऑफ नो यूज। वास्तव में वो कर डालते हैं उसको अगर जीवित रहते हैं, और नहीं जीवित रहते हैं तो फिर बात ही खत्म। सो दैट इज व्हाट द चेंज एंड readiness to embrace the change is required not only for an individual but also for an organization। कि हम कैसे ये कर पाते हैं, जरा ये कुछ कोटेशन देखिए। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस। अगर लाइफ ये है तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? तो हमें ऐसे होना चाहिए जो नीचे लिखा है, डोंट resist them, that only creates sorrow, let reality be reality, let things flow naturally they like। ध्यान से इस स्लाइड को पढ़िए। कि जब लाइफ में स्पॉन्टेनियस चेंज होने ही है, सीरीज ऑफ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस की वो है, तो फिर हम रेजिस्टेंस किस लिए करते हैं? और अगर हम रेजिस्टेंस करेंगे तो रेजिस्टेंस हमको केवल सौरो देगा, हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। इसलिए हमें उस बहती धारा के साथ बहना सीखना पड़ेगा अगर हम खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। बट वाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज? अब जैसे यहाँ पे ऐसे शूज आप पहन के चलोगे तो क्या होगा? लोग आपको अच्छा कहेंगे? शिल्पी जी, जैसे शूज इसने पहन के रखे हैं, अगर कल आप ऑफिस आ जाए ऐसे शूज पहन के तो लोग क्या कहेंगे? है ना? अब यहाँ एक पिक्चर में दिखाया गया फॉर्मल शूज को जीन्स के साथ पहन के आना, ये सब आई मीन लोग ये देख के थोड़ा वियर्ड फील करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी थोड़ा वियर्ड फील करें और कल आप ऐसे पहन के ना आए। गेटिंग पॉइंट? यस तो यस सर ये भी डिपेंड करता है कि चेंज एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। exactly, but someone would be there to do this tomorrow। राइट सर, क्योंकि देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आप कुछ भी पहन के आ रहे हो, उनको आपके काम से मतलब है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या पहन के आ रहे हैं। हाँ। मैंने अभी तक शूज तो ऐसे नहीं देखे, एक अलग अलग पहन, पर सॉक्स जरूर देख लिए हैं अब तक। सही कह रहे हैं सर। है ना? और जल्दी आप लोग ऐसे शूज को फैशन में देखेंगे टुमारो, है कि नहीं? सर एक क्वेश्चन है। हाँ सॉरी सर, एक ऑब्जर्वेशन है कि देयर आर सम पीपल जो रिजिड होते हैं, दोज हु आर नॉट रेडी फॉर चेंज, और ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को भी चेंज अगर वो चाहता है या करना चाहता है तो उसको रोकते हैं, हर्डल क्रिएट करते हैं।
तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह के लोग हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए? यही तो हम सीखेंगे। है ना, अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा अर्ली आ गया है, राइट सर, तो हम इसको पोस्टपोन कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक। चलो गुड। तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, और इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये चीजें होनी है, ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल प्रोसेस है, पर इसको रोकने वाले भी, उनकी तादाद भी कम नहीं है, पर उनसे ज्यादा जोश, उनसे ज्यादा एनर्जी, विगर उनमें है जो ऐसा करने वाले हैं। आप सोचिए ना, फैमिलीज में ग्रैंडफादर चिल्लाते रहते हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर से, जल्दी आओ, टाइम से आओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, बट दे डोंट लिसन। और आप अगर ज्यादा उनको ऐसे चिल्लाओगे तो यू विल बिकम इररिलेवेंट इन द फैमिली। वही आपसे कह देंगे, अरे ये तो बुढ़ऊ हैं, तो चिल्लाते रहते हैं, तो चीखेंगे ही, चिल्लाएंगे ही, डोंट लिसन टू। और इनके सामने मत पढ़ो, दादी हैं, बाबा हैं, इनके सामने मत पढ़ो। तो पेन किसको हुआ? दादी बाबा को हुआ ना, उसको नहीं हुआ जो ऐसे कुछ करके ऐसे शूज पहन के जा रहा है। तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर आप खुश रहना चाहते हो, बात वहां पीछे वाले को स्लाइड पे आप सोचिए कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। आपको मालूम होना पड़ेगा, चाहिए, समझना चाहिए कि वो आपसे कम से कम 50 साल छोटे हैं, तो वो उनके समय में चीजें बहुत बदल चुकी हैं, आप उनको अपने समय पे नहीं ले जा सकते हो। वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। You cannot sit over there. You can sit if you please to be there only, but you can't make anybody sit at your point, because progression is there. Progression from one point, from one situation to another situation, it change. So, लेकिन बात यही है और यही तो हमें समझना है. Why do people resist change? And how to convince them that they don't resist change? यही तो चेंज मैनेजमेंट है, कि उन लोगों को समझा ले जाना, और समझाना ही नहीं कि वो रेजिस्टेंस ना करें, वो उस चेंज का हिस्सा बने, उस चेंज को एम्ब्रेस करें, और एम्ब्रेस ही नहीं करें, वो उस चेंज का चेंज एजेंट भी बने, चेंज एजेंट भी बने। गेटिंग द पॉइंट? चेंज एजेंट का मतलब है कि ठीक वैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, कि भाई एक बार शिल्पी दुबे ने किसी कंपनी में 5,000 रुपए लगा दिए और उसके वो बन गए मेंबर, तो अब इन्होंने भी अपने दोस्तों से कहा कि भाई आप भी बनो। ऐसे बहुत हुआ। 10-15 साल पहले कितनी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कितनी कंपनीज आई, याद है शिल्पी जी आपको? यस सर। हाँ, बहुत Yes. सारी चिट फंड कंपनीज जो यही Each and every organization trying to sell their product with the multi-level marketing. हाँ, ऐसे हुआ और करोड़ों रुपए अंदर करके लोग निकल गए। स्पीक एशिया कैसे भूल सकते हैं? हाँ जी, स्पीक एशिया कैसे भूल सकते हैं सब लोग? तो आप देखिए, एक बार आपको उन्होंने चेंज किया, आपने उनको में पैसा लगा दिया, फिर आपको उन्होंने चेंज एजेंट भी बना दिया, अब आप दूसरों को भी चेंज कर रहे हो। तो ये करना एज ए मैनेजर, आपको देखिए कितना टास्क है आपका। पहले तो खुद को चेंज करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस को कैसे हम रोक सकते हैं लोगों को कि वो रजिस्ट ना करें। पहले तो हमें स्टेप पे ये करना है कि हम उनके एटीट्यूड को होस्टाइल होने से रोक लें, क्योंकि आपके हाथ में चीजें निकलते देर नहीं लगेगी, और फिर आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अगर लॉबिंग शुरू हो गई और लोग पूरे यूनाइट होके उसके विरोध में आ गए। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टॉप। तो कैसे वो ना हो, लोगों को कैसे कन्विंस करें उस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए, लोग क्यों डरते हैं चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए, इस पे हम अभी आगे आते हैं। उसी से बिल्कुल सीक्वेंस में हम चीजों को लेके चलने वाले हैं। तो फिर उनको एम्ब्रेस कराना, एटीट्यूड को बदलना, फिर उस चेंज का हिस्सा उनको बनाना, और उसके बाद उनको चेंज एजेंट बना के उनके द्वारा दूसरों को चेंज कराना। इतना सारा काम और आपको कराना है, करा लेंगे। आई होप अगर आपने चीजों को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया, समझा।
चलिए प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पढ़िए जरा, ये छोटी सी पोएम है, ध्यान से पढ़िए कि आखिर लोग रजिस्ट क्यों करते हैं चेंज को। Fear and ignorance prevents you from embracing change. Fear and ignorance robs you of a wider imagination. Fear and ignorance paralyzes you, forcing you still. To move beyond fear and ignorance is to be truly free. What would you if you were not afraid? तो यहां से आपने क्या समझा कि जो सबसे बड़ा हर्डल है चेंज में, चेंज को आगे बढ़ने में, चेंज को इंप्लीमेंट होने में, वो क्या है जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? आप लोग सब एकदम से कैमरा ऑफ कर गए, क्या हुआ? प्रगति अग्रवाल, सर बैंडविड्थ की दिक्कत हो जाती है। अच्छा, हमें तो नहीं हो रही है। तो सौरभ, क्यों लोग रजिस्ट करते हैं चेंज को? जो पहली लाइन आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, Fear and ignorance prevents you from embracing फियर change. एंड इग्नोरेंस, सबसे बड़ी बात है फियर एंड इग्नोरेंस। वंस वी कम टू नो कि लोग क्यों रजिस्ट करेंगे, वंस वी आर नोन विद द फैक्ट दैट फियर एंड इग्नोरेंस are the two main enemies of the change, तो अब हमें क्या करना चाहिए? We have to cope up with these two enemies first. हमें ये दो शत्रुओं से पहले निपटना चाहिए, फियर एंड इग्नोरेंस। अगर हमने ये दो एनिमीज को हैंडल कर लिया, नहीं कि हवन करने से पहले, हवन करने से पहले साथ साथ पूजा पाठ के साथ साथ राहु केतु को शांत करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ये राहु केतु हैं हमारे पास। अच्छा, भाई पूजा पाठ करने से पहले हमें राहु केतु को शांत करना पड़ेगा। आपको तो मालूम होगा कि देवता लोग जब भी हवन, ये सब पूजा विधान ये सब किया करते थे, तो राक्षस गण जो है वो व्यवधान डालते थे। यानी ये हमेशा से होता आया है कि कुछ अच्छा काम होगा तो उससे पहले कुछ लोग होंगे जो व्यवधान, तो ठीक वैसे ही फियर एंड इग्नोरेंस नाम के दो जो हैं, ये डेविल्स हैं, जो आपके इस अच्छे पुनीत कार्य में, इस अच्छे कार्य में जो कि होना ही है, होना ही चाहिए, वहां बाधा डालते हैं। तो इनको शांत करना पड़ेगा। इनको शांत करने की मैकेनिज्म हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों, कैसे हम इनको शांत कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तो हमने चेंज को समझा, चेंज क्या होता है और चेंज के अकर करने में लोग रजिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को फियर एंड इग्नोरेंस होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि बैंक में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो लोग विरोध कर रहे थे, फैक्ट्रीज में मशीन्स आती हैं तो लोग विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि उनको फियर क्या होता है? उनको फिर ये होता है कि जॉब चली जाएगी। बस
उनको फियर होता है जॉब के चले जाने का। और फियर क्यों होता है ये मालूम है आपको? लोगों को फियर क्यों होता है? आप कब डरते हो? शिल्पी जी आप बताएं जरा, आपको डर कब लगता है ज्यादा? आप जुड़े हैं कि नहीं? सोमनाथ जी आप बताएं, शिल्पी जी शायद नहीं है अभी। नॉट ऑडिबल। सौरभ, Sir, when we don't have any other opportunity, सर जिस चीज के बारे में कम जानकारी होती है या परफेक्ट uncertainty. नहीं, सोमनाथ जी ने आंसर सही किया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने जवाब दिया है वो है कि जब हमें जानकारी का अभाव होता है, यानी इग्नोरेंस। Sir, lack of awareness. हाँ, वही इग्नोरेंस। फियर को जन्म देने वाला वो इग्नोरेंस। ठीक वैसे जैसे थर्ड फेज में कोविड आपको बहुत परेशान नहीं किया, बहुत आप नहीं डरे, क्योंकि कोविड के बारे में आपको काफी जानकारी हो चुकी थी। कोविड को मैनेज करना आपने काफी हद तक सीख लिया था। तो थर्ड फेज में अभी थर्ड वेव जो आई या चल रही है या खत्म होने जा रही है, इसमें आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपको उसके बारे में काफी कुछ जानकारी थी, इग्नोरेंस नहीं था। तो जब इंफॉर्मेशन की इनसफिशियंसी होगी, इग्नोरेंस होगा, तो आप डरेंगे। जैसे कंप्यूटर जब आ रहा था तो लोग डर रहे थे कि कंप्यूटर आएगा, नौकरियां चली जाएंगी। बहुत लोगों ने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सिखाया गया, उस चेंज को एम्ब्रेस किया, और लोगों ने देखा कि नौकरियां जिन्होंने जो चेंज नहीं होना चाहे उन्होंने VRS लिया, और जो चेंज हो गए वो आगे बढ़े, कोई नौकरी नहीं गई दैट वेज। अब जिन्होंने बदलना नहीं चाहा तो जाहिर है उनको तो जाना ही चाहिए था, जाना पड़ा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। इग्नोरेंस गिव्स बर्थ टू फियर। फियर को बर्थ इग्नोरेंस देता है, कुछ कोई और नहीं देता। एक समय आप समझिए कि ह्यूमैनिटी, हम सब जो बिजली चमकती थी तो हमारे पूर्वज डर जाते थे कि ये देवताओं का बहुत बड़ा प्रकोप है, पर आज हम नहीं डरते ना उसको। हम समझते हैं, ओले गिरते थे तो हम डर जाते थे, हमारे पूर्वज, कि ये देवता अब हमको पत्थर मार रहे हैं, हमसे गलती हो गई। तो ढेर सारी चीजें जो एस्ट्रोलॉजिकल चीजें थी वो हमें समझ नहीं थी तो हम डरते थे। आज हम नहीं डरते हैं। एस्ट्रॉइड्स चलते थे, कुछ होता था, हम नहीं आज डरते हैं, तब पहले बहुत कुछ। तो जितना इग्नोरेंस होगा उतना ही क्वांटम में हमारे अंदर फियर होगा। तो अगर हम कहें कि आप कैसे लोगों को फियर से मुक्त कर सकते हो, आप मुक्त कर सकते हो उनको ज्ञान, उनको जानकारी में बढ़ावा कर, जानकारी उनकी बढ़ा के, उनकी नॉलेज को बढ़ा के, उनको इंफॉर्मेशन देके आप उनको फियर से फ्री कर सकते हैं। ये आगे हम लोग थेरीज में, हम अभी बहुत इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे अच्छा डिस्कशन है जब हम चेंज थेरीज और मॉडल्स पढ़ेंगे। चलिए, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट? लेट्स गो अहेड, प्लीज गो थ्रू दिस। चेंज मैनेजमेंट is a set of organizational change practices targeting reducing costs, increasing revenues, solving problems, evaluating opportunities, facilitating the flow of information. Organizational change practices जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज की प्रैक्टिसेस होती हैं, जिन चेंज की प्रैक्टिसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि या तो कॉस्ट को घटाया जाए, जैसे कंप्यूटर का आना, कंप्यूटराइजेशन होना, ऑटोमेशन होना, क्या क्या कर सकता है यहाँ पे, इन 5 चीजें जो लिखी हुई हैं उससे क्या क्या हो सकता है मोटे तौर पे? आप reducing cost, solving problem, हाँ, प्रॉब्लम्स को अच्छे से facilitating the flow of information, हाँ, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं,
कॉस्ट को रिड्यूस करने का अगर होती है तो जाहिर है उसका असर हो सकता है कि आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाए उसके थ्रू, उसके माध्यम से। कॉस्ट आप कम कर लें, सेल्स या बढ़ा लें, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लें तो रेवेन्यूज आपके बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कंप्यूटर अडॉप्ट करने से इंफॉर्मेशन का फ्लो भी आपका अच्छा आ जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इनमें। तो इन्हीं चीजों को टारगेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस चेंज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चेंज, इतना ही बहुत स्वाभाविक, बहुत नेचुरल है, कहीं पे भी बहुत पढ़े लिखे हो वहां पे भी, हम लोग प्रोफेसर्स हैं, हमारे यहाँ भी कोई चेंज आएगा, हो सकता है हम लोग रजिस्ट करें कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसमें तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद आवर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। और जैसे कुछ आएगा तो वो हमें थोड़ा सा काम देगा, हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेके आएगा, तो वो हमें अनकंफर्टेबल करेगा। हम ये नहीं देखते हैं कि उसको अडॉप्ट करने के बाद हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती है, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमें तुरंत उसका विरोध करना है कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो मुश्किल काम आज अगर हम कर लें थोड़ा 2, 4, 6 घंटे ज्यादा देख के, तो हो सकता है हमारे सैकड़ों घंटे आगे के बचा देगा वो मुश्किल काम। लेकिन हम उतना आगे नहीं सोचते हैं एक साथ में। Until and unless there is a compulsion, we are not ready to embrace the change. तो यही है एटीट्यूडिनल बैरियर, सबसे बड़ा एटीट्यूडिनल बैरियर। लेकिन जैसा कि आपने पीछे देखा कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, वो होगा, आपकी लाइफ में भी होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये है जहां पे आपको जो प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी वजह से जिन लोगों को दिक्कत हो सकती है, या कई बार आप अच्छे से मैनेज कर लो तो नहीं हो। यही चेंज मैनेजमेंट है कि ये चीजें तो होनी है, ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बदल रहे हैं। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपके अंदर विरोध के स्वर आएंगे, उनको कैसे आपको हैंडल करना है, दैट विल बी योर जॉब। कितने तरह का चेंज होता है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो मोटे तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड चेंज, पीपल चेंज। यानी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के। कभी कुछ किताबों में आपको स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी भी लिखा होगा, कुछ बुक्स में आपको 4 दिख जाएंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, पीपल। हम स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रेटजी भी चलो ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी बदल सकती है, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी बदलनी ही पड़ेगी उनको समय के साथ, ठीक वैसे जैसे उनको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है टाइम के साथ, स्ट्रक्चर बदलने पड़ते हैं टाइम के साथ, और वैसे ही उनको पीपल, लोगों में भी बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। तो जब लोगों से जुड़े हुए बदलाव हों तो वो पीपल रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जब वर्क प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, इक्विपमेंट से रिलेटेड बदलाव होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस कहलाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर, हायरार्की या उनकी स्ट्रैटेजी टॉप लेवल पे फॉर्मुलेट होती है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्टेड करती हैं, तो जब यहाँ पे चेंज होंगे तो उनको स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड चेंजेस कहते हैं। तो बेसिकली 3-4 तरीके के चेंजेस होते हैं मोटे तौर पे। अब उनके अंदर छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। Yes. Yes, sir. गुड।
यहाँ देखिए वही 3 को हमने 4 में ब्रेक करके दिखाया है। जरा गो थ्रू दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, इस स्लाइड को आप जरा क्विकली देख लीजिए, थोड़ा और डिटेल में रखा हमने इसमें। Gone through? Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए दूसरा टाइपोलॉजी ऑफ चेंज, एडेप्टिव, ट्रांजिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। एडेप्टिव, ट्रांजिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। ये डिग्री जो चेंज की है उसकी बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। डिग्री ऑफ चेंज, टू व्हाट एक्सटेंट चेंज इज रिक्वायर्ड। एडेप्टिव चेंज कैसे है? जैसे आपकी रिपोर्टिंग होती है, आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, आप पेज पे लिख के शाम को आप पूरे दिन आपने क्या काम किया, आपने वो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को भरा और बॉस को जमा कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ये आप करते आ रहे हैं महीनों से, सालों से या महीनों से। अचानक आपकी ऑफिस ने कहा नहीं अब ये फॉर्मेट नहीं, ये फॉर्मेट भरो, तो ये किस तरीके का चेंज है? So transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। No. Sir, it is adaptive. Which kind of change it is? It's adaptive you. Adaptive. Adaptive, right? अगर उसने फिर एक दिन कह दिया कि अब आपको कंप्यूटर पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, See, transitional हुआ. हाँ जी, Transitional. और कोई ट्रांजिशनल? So working Yes, sir. on computers is still in adaptive mode, I think. Dhiren, please repeat. Sir, if someone is working on a system or his officers told him to work on a system, so maybe that person is adaptive to that new system, na? So it is an adaptive change. Saurabh? So yeah, I agree with Dhiren. देखिए अभी It is initial level पे It is transformational. It is transformational. Okay. आप आपका एकदम एक मैनुअल से डिजिटल पे आ गए। Okay. Getting the point? Okay. This is transformational. अभी चलो आप पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर आता है, it is easy for you to do this, to move from adaptive to एक पुराने तरीके से नए तरीके पे आना आपके लिए आसान है। But imagine for those who are not computer savvy, for them this will not be like this. Switching from one mode to another mode is not that ways, not similar to that in your case, that in my case. For that, transitional changes will be required. Transition हो from one phase to another phase तक पहुंचने के लिए कुछ पड़ाव से होके गुजरना। अभी उनको कंप्यूटर सिखाओ, फिर धीरे से उनको मैनुअल से डिजिटल करके सिखाते हुए
तभी आप देखिए ट्रांजिशनल में एडेप्टिव से ट्रांसफॉर्मेशनल तक पहुंचना एक प्रोसेस है। गेटिंग द पॉइंट? सर ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजिशनल का कोई एक एग्जांपल से, एक सिंगल एग्जांपल से सर कुछ एक बार बताइए। मैं वही बता रहा हूं कि ठीक जैसे एक ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड से मैनुअल से फुली ऑटोमेटेड होने के बीच में हाइब्रिड कि भाई दोज who can be fully automated go on to the fully automated, those who are not that much efficient or that much skilled, तो उनके लिए कुछ स्टेप्स में वो ट्रांसफॉर्मेशन टारगेटेड हो। जहां तक पहुंचाना है आपको वो एक 4-6 चरण, कुछ स्टेप्स, 2-3-4 स्टेप्स में पहुंचाओ उनको, एकदम नहीं वो पहुंचाया जा सकता। तो कई बार जब चेंज इतने बड़े लेवल का होता है जो कि पूरी तरह से चीजों को बदल सकता है, तो एकदम से सारी चीजें बदल पाना इज डिफिकल्ट टास्क। तो चेंज को हम फेज वाइज इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक वैसे जैसे आपसे कहा गया रिपोर्टिंग करने की बात मैं आपसे कह रहा हूं। अभी पहले दिन आपसे कहा गया कि ऐसा करिए, अब आप ईमेल से रिपोर्ट भेजिए, मैनुअल मत दीजिए। अभी आपको एक्सेल शीट पे नहीं सिखाया गया है। रिपोर्टिंग जो आप बना रहे थे वैसे दूसरी रिपोर्ट्स बना रहे थे, डेली आप अपनी रिपोर्टिंग, डेली आप अपनी कॉल की रिपोर्टिंग कर रहे हो मेल से, लेकिन एक्सेल आपको अभी नहीं आता। तो एक्सेल का काम मैनुअल करके टेबल पे दे दो। फिर धीरे से आपने एक एक्सेल पे वर्कशॉप करा दी, अभी वो सब मैनुअल में आप परसेंटेज कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, सम कर रहे हो, बड़ी बड़ी टेबल पे सब मैनुअल कर रहे हो, टाइम लग रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपका चाह रहा है कि ये भी ऑटोमेटिक, ये भी कंप्यूटराइज करना है। मेल लिखना तो एक दिन वर्कशॉप करा दी, आपको मेल लिखना आ गया और आप रिपोर्ट करने लग गए। तो मेल आसान था, पहले चरण में उन्होंने आपको कंप्यूटर का थोड़ा चस्का लगाया, कंप्यूटर पे सबके मेल आईडी बना दिए और आपको सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप लॉगिन करेंगे और ऐसे ऐसे कुछ लिखेंगे और यहाँ ऐसे लेकिन अचानक आ गया कि MS एक्सेल पे वर्कशॉप है। 1 वीक की वर्कशॉप आपके लिए रख दी गई। अब आप 1 वीक वर्कशॉप में सीख रहे हैं ऐड कैसे कर सकते हो, समेशन कैसे कर सकते हो, सब जो भी फंक्शंस हैं वो सब आपको रिपोर्ट को आप एक्सेल पे बना के करो, सीखो, करो, गलतियां भी धीरे धीरे उन्होंने उस लेवल पे आपको लेके जाना है जो डिजायर्ड है। तो फ्रॉम द करेंट लेवल टू द डिजायर्ड लेवल देयर आर that period called transition and those steps are called transitional steps, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे डिजायर्ड लेवल पे ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि एकदम आप अगर चेंज को इंप्लीमेंट कर दोगे और वो चेंज बड़ा होगा, एडेप्टिव नहीं है। एडेप्टिव छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आप बड़े आसानी से मूव कर जाते हो। 10%, 2%, 5% आपको अपने तौर तरीकों में बदलाव करना है। जब आपको अपने तौर तरीके में 100% बदलाव करना है, इंटू 2 करना है, इंटू 3 करना है, तो फिर आपको एकदम नहीं करना है। अगर आप एकदम करेंगे तो आप रेजिस्टेंस के और फिर चेंज ये जैसे जा रहा है होता है, लेकिन वो ट्रांजिशन के थ्रू करना पड़ेगा।
गेटिंग द पॉइंट? वो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका, एडॉप्ट करने का तरीका, तो सर मतलब है कि पहला चेंज होगा वो एडेप्टिव होगा, देन ट्रांजिशनल होगा और फाइनली ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। यस ये स्टेप्स हैं। यस यस यस, वैसे आपको लेके जाना है। अब हमेशा हमेशा जब भी चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल हो, आपको मालूम है आपका आज का लेवल और आप जहां ले जाना चाहते हो, आपको पता है, मैनेजर को पता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके पहुंचना है। वो पहुंचने का, डिजायर्ड लेवल पे पहुंचाने का करंट लेवल से कुछ फेजेस में प्लान करो। एब्रप्ट चेंजेस इनवाइट रेजिस्टेंस। Just remember, every is pose threat to the people, and देखो तो लगेगा अरे आप तो बॉस है, आप तो जो कहेंगे हो जाएगा। नहीं, नहीं हो जाएगा। आप क्या करेंगे? अचानक सबको फायर नहीं कर देंगे। अचानक सबको फायर करेंगे तो दूसरी ट्रबल। सबके अपने राइट्स हैं, कंज्यूमर सबके अपने एम्प्लॉय राइट्स हैं, लेबर लॉज हैं, सबको निकाल नहीं सकते हो आप। सो एम आई क्लियर टू यू ऑल? अगर आप चाहते हो कि स्ट्राइक्स ना हो, अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस ना हो, तो डोंट इंप्लीमेंट एब्रप्ट चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। टाइप ऑफ चेंज एंड डिग्री ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट कंटिन्यू। ये देखिए जरा, क्या हम यही रोक दें इसको आज डिस्कशन, या कंप्लीट कर लें? मुझे लगता है 5 बजे तक कर लेंगे तो हो जाएगा। Yes, sir. Carry on. गुड। टाइप ऑफ चेंज एंड डिग्री। देखिए, इंक्रीमेंटल चेंज, रेडिकल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल पेरिफेरी, ऑर्गेनाइजेशनल कोर। ये 4 डायमेंशंस को आप समझिए। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब है वही धीरे धीरे आप चेंज ला रहे हो। रेडिकल चेंज कोई ऐसी चीज जो एकदम से बदल देती है, जैसे जैसे पुराने टाइप राइटर हट जाए और नए टाइप प्रिंटर आ जाए। आपने ऑल ऑफ सडन सारे टाइपराइटर पुराने वाले हटा दिए थे और ऑल ऑफ सडन प्रिंटर ले आए थे। अगर आप ये करते हो तो रेडिकल चेंज है। ऑल ऑफ सडन आपने मैनुअल काम बंद करके और आपने डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड कर दिया, तो इसके लिए आपके पुराने वर्कर्स नहीं काम कर पाएंगे। आपको फिर सारे के सारे लोग नए लाने पड़ेंगे, सारी की सारी चीजें बदल देनी पड़ेगी। तो अब इनको हम दो के कॉम्बिनेशंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट अगर हम लें, रेडिकल चेंज, या पहला क्वाड्रेंट हम इंक्रीमेंटल से शुरू करते हैं। इंक्रीमेंटल चेंज में चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल पेरिफेरी। इंक्रीमेंटल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल पेरिफेरी, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के कोर से संबंधित वो चेंज नहीं है। यानी बहुत बड़ा कोई ऐसा चेंज नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशनल पेरिफेरी है और इंक्रीमेंटल चेंज है। जैसे आपने कह दिया कि भाई अब सर्कुलर मैनुअल नहीं होंगे, हम व्हाट्सएप पे भेजा करेंगे, पेपर बचाएंगे। सबके पास मोबाइल फोन है, सर्कुलर भेजना मींस पेपर वेस्ट करना और लोगों को दौड़ाना सबके पास वो सर्कुलर पहुंचने के लिए। तो बेहतर ये है कि भाई सबके पास स्मार्टफोन है और हम एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सर्कुलर जाएंगे। तो ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोर तो है नहीं, बोलो।
सोमनाथ? You are not audible. तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है बट कोर नहीं है. इट इज भाई ऑर्गेनाइजेशन को क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ये है कि चीजें स्मूथली चले, ठीक है? तो स्मूथ फंक्शनिंग में सर्कुलर का जाना आना स्मूथ है. वो सर्कुलर का जाना आना ऑर्गेनाइजेशन की पेरीफेरी है, कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचने के लिए. वो कोर नहीं है. यस सर. कोर और पेरीफेरी का मतलब समझ रहे हो? ये सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज बिल्कुल से बिल्कुल सही शब्द है. सपोर्ट एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है. जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइजेशन का कोर होता है. सपोर्टिंग में एंसिलरी एक्टिविटीज हैं. तो ये इंक्रीमेंटल चेंज है कि भाई मोबाइल फोन है, हम सब मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप पे आ गए और ग्रुप बना लिया. तो इसमें क्या है? लो डिस्टरबेंस, लो रिस्क. धीरेन्द्र समझ गए? यस सर. लो डिस्टरबेंस, लोगों को डिस्टरबेंस लो है इसमें. क्या आपने डिस्टर्ब किया लोगों को? कोई डिस्टरबेंस नहीं किया. आपने एक ग्रुप बना लिया, बस आप सबसे कह दिया भाई ग्रुप चेक करते रहो, देखते रहो मैसेज. लो रिस्क. जब लो रिस्क, लो डिस्टरबेंस, तो नो या लो रेजिस्टेंस. 100-200 लोगों में 2-4 लोगों ने कहा होगा कि साहब मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं नहीं चलाता व्हाट्सएप. तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा चलो ठीक है भाई, आप नहीं चलाते, आपको आपका दोस्त बता देगा, आपको आपका बगल केबिन वाला बता देगा. यह सुनो, यानी 2-4 लोगों ने कहा कि साहब ये हम नहीं कर पाएंगे, बाकी 200 लोगों ने तो मान लिया ना. That's it. अब आप आ जाइए इंक्रीमेंटल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कोर. अब जब वो ऑर्गेनाइजेशनल कोर से संबंधित होता है, इंक्रीमेंटल चेंज है, जब भी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल कोर से जुड़ी होंगी वहां आपकी गलती का पनिशमेंट आपको ज्यादा मिलेगा. यस और नो? यस सर. यानी जब पनिशमेंट का फियर आपको ज्यादा है तो फिर आपका रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से होगा. यस सर. तो यहां पे आप देख रहे हो मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट डिस्टरबेंस. चूंकि इंक्रीमेंटल चेंज है तो आपको लगता है अरे कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है, बहुत परेशानी नहीं होगी इसमें, राइट? कर लेंगे. तो मॉडरेट है. हाँ, लो से तो ज्यादा है, लो से तो ज्यादा है पर हाई नहीं है. ऑलराइट, ये हो गया मॉडरेट डिस्टरबेंस, मॉडरेट रिस्क. सिमिलरली इसके डायगोनली अपोजिट एक जो क्वाड्रेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पेरीफेरी, रेडिकल चेंज. अगर ऑर्गेनाइजेशनल पेरीफेरी में कोई रेडिकल चेंज हो जाए, जो जैसे आपसे कह दिया जाए अब साहब ये मोबाइल लीजिए, ये डेडिकेटेड मोबाइल है आपके रिपोर्टिंग के लिए, अब आप अपना फोन नहीं, या आपको ये सिम दे दिया जा रहा, यही सिम आप रखेंगे. यानी अब आपके पास एक मोबाइल नंबर था, उसको आप अक्सर बंद कर लेते थे, बंद करने की फ्रीडम थी. क्यों सोमनाथ? है ना? अब कंपनी ने क्या कहा कि आप ये सिम कार्ड लीजिए, लगा लीजिए. डुअल सिम वाले फोन में सबके पास डुअल सिम वाले फोन है, अब आप बंद नहीं करेंगे. पर मुद्दा अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल पेरीफेरी का ही है, रिपोर्टिंग का ही है, सर्कुलर जाने आने का, इमरजेंसी में कॉल आने का है. तो रेडिकल चेंज है. पर अब आपके पास एक नया फोन नंबर आ गया, ये एक रेडिकल चेंज है, तो थोड़ा मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट डिस्टरबेंस. गेटिंग द पॉइंट? माधवेंद्र, are you there? Madhvendra, Suprabha. Yes, sir, I am there. Okay. So समझ गए आप? तो मॉडरेट, यहाँ पे भी मॉडरेट डिस्टरबेंस, मॉडरेट रिस्क. ये जो रेड है
ये सबसे मुश्किल होता है, राइट? यहाँ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है इस क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा है ऑर्गेनाइजेशनल कोर का And radical और रेडिकल चेंज का। ये मुद्दा है बैंक में कंप्यूटराइजेशन का। ये मुद्दा है फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन आने का। इसलिए ये लाल रंग का क्वाड्रेंट है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, परसेप्शन ऑफ रिस्क ज्यादा है, डिस्टरबेंस ज्यादा है, पुरानी प्रैक्टिसेस को बदल देना है नई से, तो लोगों को डर है, फियर है, इसलिए लोगों में रेजिस्टेंस है। हाई डिस्टरबेंस, हाई रिस्क परसेप्शन, सो हाई रेजिस्टेंस। सौरभ, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। आप थे साथ में? ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है, रेडिकल और इंक्रीमेंटल? ज्यादा एक्सेप्टेबल? अब सीधी सी बात है, चेंज अगर इस क्वाड्रेंट में है, लो डिस्टरबेंस, लो रिस्क, लो रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, लोग आसानी से मान जाएंगे। मॉडरेट वाला थोड़ा ज्यादा डार्क येलो है, ब्राउन साइड पे या क्या कहें इसको, वो मॉडरेट है। रेड वाला तो ये कलर जैसे ही चेंज हो रहा है डार्कर, वैसे ही रिस्क का परसेप्शन ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा डिस्टरबेंस परसीव कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। तो जैसे रेड है तो रेड में हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि कोर से जुड़ा हुआ मसला है, रेडिकल चेंज है। यहाँ पे लोगों को जॉब जाने का परसेप्शन है, लोगों को रिप्लेस होने का परसेप्शन है, तो इसलिए उनमें, क्योंकि उनको पूरी तरह से अपनी प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस को बदलना पड़ेगा, इसलिए वो हाई परसेप्शन ऑफ रिस्क है उनके अंदर, इसलिए हाई रेजिस्टेंस है। सर लो डिस्टरबेंस और लो रिस्क वाले से ट्रांसफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा हाई डिस्टरबेंस और हाई रिस्क वाले से ही। अगर हमें मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाना है तो ये हमारा हाई डिस्टरबेंस एरिया वाला होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी से ही होगा। तो कहीं ना, और इसी को एक्सेप्ट करना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो यही तो मैनेजमेंट करना है आपको, कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, मैनुअल से डिजिटल हो रहे हो, तो वो कैसे होना है, वो एब्रप्ट नहीं होना है, वो ट्रांजिशन के थ्रू होना है, और वो कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे उनके फियर को हैंडल करना है, कैसे धीरे धीरे डोज देनी है। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन चेंज मैनेजमेंट, राइट? ये है डिजायर्ड लेवल। अगर ये है तो ये अचानक से करोगे तो ये लाल अलार्म बजेगा, लाल बत्ती जल जाएगी, तो इसको नहीं जलने देना है। यही तो हमें स्मार्टली करना होता है। क्योंकि सर एक चीज, वो ऑब्जर्वेशन इधर जो चल रहा है वो हम ये देख रहे हैं कि जैसे पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो अगर कम नहीं हो रहे हैं, तो उसके जो बाकी रीजन हैं वो तो हैं कोविड और ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशनल फेज भी जो दिख रहा है इसमें, कि कहीं ना कहीं ईवी की तरफ कंट्री को फोकस ज्यादा किया जा रहा है। तो देखिए आने वाले समय में आप अभी एक्सपेक्ट मत करिए ये प्राइसेस फॉसिल फ्यूल के कम होंगे, क्योंकि इनको बढ़ाएंगे तभी तो आप ईवी की तरफ जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर वापस 75 और 70, अभी 95 किसी को एक्सपेक्टेड वो चल रहा है, वो 80 भी हो जाएगा तो भी आदमी खुश है। तो ये आगे ये आप ठीक सोच रहे हो, इसलिए ये चीज नहीं होनी है। वो धीरे धीरे इनके प्राइसेस घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे अभी, और तभी लोग ईवी की तरफ स्विच होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ तो ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि लोगों का मूवमेंट नेचुरली हो उधर। एक प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल क्या है कि एक फ्रॉग को अगर आप एक बर्तन में बिठा दें पानी में, और उस पानी को धीरे 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 गर्म होने दें, धीरे 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 टेम्परेचर उसका बढ़ने दें, वो फ्रॉग उसी में बैठा रहेगा और एक टाइम पे वो फ्रॉग मर जाएगा। लेकिन अगर उस फ्रॉग को आपने थोड़े गुनगुने पानी में रखा जैसे ही, तो वो जंप करके भाग जाएगा। वहां उसका जो टेम्परेचर का एब्रप्ट चेंज आया,
उसने उसको सेंस दे दिया, सेंसेशन दिया कि दिस इज हियर इज अ डेंजर, जस्ट रन अवे, वो भाग जाएगा। अगर आपने उसको ठंडे पानी में, जो पानी नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें उसको रखा, वो बैठा रहा और आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसको दिक्कतें भी आएंगी, पर वो सेंस नहीं कर पाएगा और उसी पानी में वो मर जाएगा। दैट्स नेचुरल कि धीरे धीरे जैसे लोगों को डोज दी जाती है महंगाई की और फिर उस महंगाई के वो आदी हो जाते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स हैपन नेचुरली। उसी तरह से चेंज को एब्रप्ट नहीं इंप्लीमेंट करना है, चेंज को फेज वाइज ट्रांजिशन के तौर तरीके से लेके जाना है उसको, तब आप सही तरह से चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वेल, तो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज है क्विकली पढ़िए। पावर, टाइम, स्कोप, कैपेसिटी, प्रिजर्वेशन, रेडीनेस, कैपेबिलिटी, डाइवर्सिटी, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज है। पावर, व्हाट पावर हैज द चेंज लीडर, जो चेंज लीडर हो उसके पास क्या पावर, क्या फ्रीडम होनी चाहिए, ये हमको डिसाइड करना होगा एज ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। टाइम, कितने टाइम है उस चेंज को इंप्लीमेंट करने का, हाउ क्विकली चेंज नीडेड, ये हमें देखना है कि कितना टाइम हम चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए दे सकते हैं, क्या स्कोप है, व्हाट डिग्री ऑफ चेंज इज नीडेड, कैपेसिटी, व्हाट रिसोर्सेस आर अवेलेबल, उस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, वो सब भी मौजूद होने चाहिए, तभी हम चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चेंज हमें करना है तो क्या रोक के रखना है, क्या नहीं चेंज करना है। हमारी जो कुछ बहुत अच्छी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको हम चाहते हैं नहीं बदलें, जो बदलने वाली उनको बदलें, तो जिनको नहीं बदलना है उनको हम कैसे रिटेन करके रखें उस चेंज की प्रोसेस में, ये हमें देखना होगा। रेडीनेस क्या है, हमारी वर्कफोर्स कितनी रेडी है। जैसे हमने कहा था कि कंप्यूटराइजेशन हुआ, बहुत कम लोगों को कंप्यूटर आता था बैंक में, ऑल ऑफ सडन कह दिया गया ऑटोमेशन होगा, तभी इतना आंदोलन रेजिस्टेंस हुआ। धीरे धीरे बजाय डिक्लेयर करने के वो अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करते, बैंक अपने क्लर्क्स को कंप्यूटर सिखाते और धीरे धीरे उनको कंप्यूटर में लाते। कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं थी, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होने देना चाहिए था और बड़े ही इजीली उस काम को किया जा सकता था। लेकिन वो रेडीनेस हमें चेक करना चाहिए कि जो चेंज को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, चेंज एजेंट जो बनेंगे, वो कितने तैयार हैं। कैपेबिलिटी, आर लीडर्स कैपेबल ऑफ मैनेजिंग चेंज, जो हमारे लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स, लीडर्स, उनके थ्रू चेंज नीचे परकुलेट होगा और बॉटम पे चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या वो लीडर्स की जो फोर्स है वो रेडी है चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डाइवर्सिटी, हाउ डाइवर्स आर द पीपल इन्वॉल्व, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कितने डाइवर्स डोमेन ऑफ नॉलेज के हैं, ये भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, उस समय आपको मोटिवेशनल लीडर्स भी चाहिए, उस समय आपको काउंसलिंग करने वाले काउंसलर्स भी चाहिए। तो उस समय आपको डांटना भी पड़ सकता है, उस समय आपको पुचकारना भी पड़ सकता है। There are so many activities are simultaneously going on. So do you have those kind of people who can do all these things, who can handle all these things? ये हमको देखना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह लेने की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देखिए कि सक्सेसफुल चेंज स्ट्रेटेजीज टिपिकली कंबाइन टेक्निकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान दीजिए कि जो सक्सेसफुल चेंज स्ट्रेटेजीज होती हैं वो टेक्निकल और ह्यूमन एस्पेक्ट दोनों को लेके चलना। टेक्नोलॉजी आप लाना चाहते हो लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ। टेक्नोलॉजी डजंट हैव एनी इमोशंस, टेक्नोलॉजी इज ब्लंट थिंग, whereas human beings do have emotions, feelings, fear, attitude, everything. तो दोनों ही हार्ड एंड सॉफ्ट, दोनों के बीच में सामंजस्य बना के चलना। टेक्निकल साइड में भी आप
आपको करंट से फ्यूचर लेवल पे लेके जाना है, और पीपल साइड पे भी आप करंट से फ्यूचर पे जाना है। तो कैसे करंट से फ्यूचर का ट्रांजिशन होना है टेक्निकल साइड में, पीपल साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजाइन, डेवलप, डिलीवर। टेक्निकल साइड में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करनी है, डेवलप करनी है, डिलीवर करनी है जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जिसमें लोगों को एंगेज किया जा सके, लोग एडॉप्ट कर सके, जिसको लोग यूज कर सके। तो एंगेज, एडॉप्ट, यूज, ये पीपल साइड पे आपको करना है। टेक्नोलॉजी साइड पे आपको डिजाइन, डेवलप, डिलीवर करना है। इन दोनों साइड को आप मिला के एक चेंज को मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। माधवेन, क्लियर आपको? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छी बुक्स है, हु मूव्ड माई चीज एंड लीडिंग चेंज। जब भी मौका मिले पहले आप हु मूव्ड माई चीज को पढ़िएगा, फिर आप लीडिंग चेंज पढ़ सकते हैं, राइट? ये हमारे लेक्चर के रेफरेंसेस हैं। ओके सर। राइट? अभी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। Yeah. Any doubt, any question, any observation? No, sir. Thank you very much for patient listening. कोई अटेंडेंस मुझको जो एक लोग कोई भेजते हैं वही भेज दें, मुझे नाम नहीं मालूम है उनका, राइट? तो अटेंडेंस भेज दीजिएगा। करेंगे कि मैं ले लूं? कौन भेजता है मुझे अटेंडेंस? कोई बोल नहीं रहा। लास्ट टाइम तो जिज्ञासा ने भेजी थी। ये तो टॉप सीक्रेट था। चलो सौरभ जी, आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर आप ले लीजिए। ले रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है मैं जब तक आपकी कंसेंट लूं तब तक मैं अटेंडेंस ही ले लूंगा यार। हाँ सर। Wait. सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको भेज देंगे। चलो फिर ठीक है।